So students, we are going to take some more examples, but before that we'll revise some concepts. The first one is about the average velocity, right? So what is average velocity, right? So average velocity is the total displacement by total time, right? Okay, which we can write as delta x by delta t or delta s by delta t. Okay, so the average velocity is the total displacement by total time taken. What about the average acceleration? What is average acceleration? Average acceleration is the change in velocity upon the time taken. So v final minus v initial divided by t final minus t initial. So that is total change in velocity. So total change in velocity by total change in time or total time taken. Alright, so we already know these concepts, the average velocity and the average acceleration. Alright, okay. So we are going to take some examples based on this, and we'll also discuss the area under the graph. Now let us discuss the area under VT graph. Alright, so area under velocity time graph. So if we have a velocity time graph, alright, like this, let us say this one, this is velocity and this is time. So if we take a small time interval, if we just consider a small time interval, let us say, this is a time instant t and this is a small interval, this is, let us say, dt, a very very small interval, ठीक है, dt, and ऐसा मान लेते कि इस टाइम t पे जो velocity है वो velocity v है, ठीक है, तो ये एरिया कितना होगा, right? What will be this area? So this area will be length into breadth. Now this is the length, so the length will be equal to v, that is the velocity at this point of time, right? Velocity is a function of time, and this would be the breadth, that is dt, so it would be v dt, right? So the area under VT graph is basically v dt, it is v dt. Now we know that, what do you know? We know that velocity is equal to ds by dt, right? What is velocity? Velocity is the rate of change of displacement, that is ds by dt, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर हमने dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ds क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा v dt, ठीक है, ds क्या हो जाएगा? v dt, ऑलराइट। तो ये अगर हमने देखा यहाँ पे ध्यान से, तो dA और ds, dA इज ऑल्सो v dt, ठीक है, v इज वेलोसिटी, आप चाहो तो यहाँ वेक्टर लगा दो, ठीक है, वेलोसिटी, तो v dt या फिर यहाँ मॉड ले लो, ds का मॉड और v dt का मॉड, तो ये हो गया ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट, dA is v dt, ds is v dt. So what can we say? So we can say that ds is equal to dA is equal to ds is equal to dA is equal to v dt, right? That is displacement is equal to area under the VT graph. So if I integrated both the sides, right, if I integrated, it will be integration of ds is equal to integration of v dt. Okay, so what do I get from here? So from here I get displacement is equal to integration of v dt.
अगर आप वेक्टर फॉर्म में चाहो यू कैन राइट इट लाइक दिस, displacement vector is equal to integration v dt, right? So this is basically the area. This is also the integration of the area under the graph. So this is also equal to integration of the area. So this is basically equal to area, right? And area under VT graph. So हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंने आपको इस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी बताए थे, राइट? जस्ट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि from velocity time graph we'll get the displacement, right? Displacement का मतलब हो गया change in position, right? That is x final minus x initial, ये होता है displacement, ठीक है? This is displacement and this is equal to area under VT graph, so VDT, okay? Alright, so displacement can be found by finding out the area under the VT graph. Okay, now let us discuss the area under AT graph and then let us do some questions based on all these concepts. So let us now discuss area under acceleration time graph. Okay, so first let us consider acceleration, as a function of time. ऐसा कुछ, just for example I may take like this, acceleration is equal to t square plus 3t, something like this. So acceleration is given as a function of time, right? और हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगर मैं इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv, ठीक है? मतलब a small change in velocity, that is an infinitesimal change in velocity is equal to a dt, ओके? और अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर एक ग्राफ कंसीडर कर लिया, ठीक है, if I just consider one graph here, velocity acceleration time graph, this is acceleration and this is time, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ एक ग्राफ कंसीडर कर लिया और इसमें जैसे मान लो कि ये मैंने ले लिया है t1, ये मैंने ले लिया है t2, ठीक है? ओके, तो मुझे ये देखना है कि एरिया अंडर दिस ग्राफ ये मुझे क्या देगा, व्हाट विल दिस गिव? तो मैं इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ पहले, तो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया. तो ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है ये किसी टाइम t पे मैंने कंसीडर किया होगा, तो मैंने यहाँ पे टाइम t मान लिया है. और ये जो एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, इस एलिमेंट का थिकनेस मैंने मान लिया है dt, ठीक है? dt मान लिया. और ये जो t टाइम है, t टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मैंने a मान लिया है, ठीक है? जो भी पर्टिकुलर होगा उस वक्त एक्सेलरेशन यानी फंक्शन ऑफ टाइम ये मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है? तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो इसको तो आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो. और जो यहाँ पे एरिया होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा ये यानी a, ठीक है? यानी f ऑफ t, तो a, और ब्रेड्थ होगा dt, तो dA इज इक्वल टू क्या आ गया, dA इज इक्वल टू a dt, ठीक है? ये आ गया एरिया. अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये आपको क्या देगा, एरिया देगा. ऑलराइट, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अगर आप कंपेयर करो तो ये भी a dt है, ये भी a dt है, राइट? अगर मैं इंटीग्रेशन हटा दूं यहाँ से तो आप देख सकते हो ये बेसिकली क्या है, dA इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर. तो मैं 1 और 2 से क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, a dt, ठीक है? ऑलराइट, एरिया अंडर AT ग्राफ, दिस इज द एरिया अंडर AT ग्राफ विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी. द एरिया अंडर द AT ग्राफ विल गिव अस द चेंज इन वेलोसिटी. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ तो ये dv का इंटीग्रेशन, ये dA का इंटीग्रेशन, और ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ a dt यानी एरिया अंडर AT ग्राफ. ऑलराइट, तो dv, राइट, dv का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल से v फाइनल, एरिया का इंटीग्रेशन 0 से a, और ये t इनिशियल से t फाइनल. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है? वेलोसिटी, ऑलराइट, v फाइनल माइनस v इनिशियल is equal to area under the graph is equal to integration of a dt.
So this is the change in velocity. मतलब area under AT graph, area under acceleration time graph, the acceleration time graph. The area under acceleration time graph will give us what? Will give us the change in velocity. All right. So this will give us the change in velocity. This area will give us change in velocity. So this is very important thing. मतलब from acceleration time graph, we can directly find out the change in velocity. All right. Okay. Okay. So now we should understand one thing. Area above time axis. Area above time axis will be taken as positive change in velocity. Okay. And area below time axis. Area below time axis will be taken as negative change in velocity. So for total change, we'll add all the areas. For total change, for finding out the total change, we'll add all the areas. All right. ठीक है. Suppose, for example, if we have a graph like this, you know, कि इसमें आधा ऐसा ऊपर है और आधा नीचे इस तरह से है. ठीक है. इस तरह से ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके. तो जो ऊपर वाला एरिया है, राइट, ऊपर वाला एरिया उसको A1 कह दो, नीचे वाला जो एरिया है उसको A2 कह दो. तो यहाँ पे A1 क्या देगा आपको? A1 देगा पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी और A2 क्या देगा? नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी. तो जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी इनका अलजेब्राइक सम हो जाएगा. ठीक है. मतलब A1 प्लस A2, राइट. तो जो टोटल अलजेब्राइक सम होगा एरिया का, मतलब इसको आप टोटल चेंज वेलोसिटी हो जाएगा आपका डेल्टा V1 और ये माइनस डेल्टा V2. ये वैल्यूज आप डाल दोगे. ठीक है. ओके. तो जो एरिया नेगेटिव है, जो एरिया बिलो टाइम एक्सिस है, राइट, दैट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी. सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्लस डेल्टा V1, राइट, ये, और माइनस डेल्टा V2. ठीक है. समझ में आ रहा है आपको? अगर दोनों ये टाइम एक्सिस के ऊपर होते तो हम दोनों को ऐड कर देते, यानी दोनों जो है वो होता है पॉजिटिव चेंज इन एरिया. बट जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वो है पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, और जो टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी. तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? प्लस डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2 इस केस में. ठीक है. ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, हमने उसके लिए डिस्कस किया है, राइट. तो आई होप आपको समझ में आएगा. तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, राइट. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन. ठीक है. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी. ओके. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज very simple. Area under velocity time graph. ठीक है. Area under will give us displacement. Okay. और change in position. That's all. ठीक है. And area under acceleration time graph, वो क्या देगा हमको? वो हमको देगा चेंज इन वेलोसिटी. जैसे ये हमें दे रहा है चेंज इन पोजीशन, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल, वैसे ये हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल. दिस इज द कंक्लूजन. सो लेट अस नाउ डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. So still let us discuss one question. So in this question is given that the velocity time curve of a moving point, velocity time curve of a moving point, there is some particle which is moving, उसका velocity time graph हमें यहाँ पे दिखाया गया है, shown in the figure. Find the retardation of the particle for the portion CD. Alright, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. तो बोला गया find the retardation of the particle for the portion CD. So first we should understand retardation या acceleration. मतलब basically हमको acceleration find करने के लिए कहा गया है. ठीक है. Alright. तो जो acceleration होगा यहाँ पे for the portion, यानी आपको पूरे एक
टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करना है, मतलब आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? CD का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है आप देख सकते हो यहाँ पे वो है टाइम t इज इक्वल टू 70 सेकेंड्स पे, तो वेलोसिटी इज 0, राइट? वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो वो हो जाएगा 0 माइनस, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वो है 60, तो 0 माइनस 60, राइट? और t फाइनल इज 70, राइट? क्योंकि फाइनल पॉइंट है d और इनिशियल पॉइंट है c, CD. When you say CD, D is the final point and C is the initial point. Okay, C is the final point and C is the initial point, D is the final point. तो final time हो जाएगा 70 और initial time है 40. Okay, तो आपको मिल जाएगा माइनस 60 by 30, that's माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो रिटार्डेशन है दैट इज, रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन है -2, या एक्सेलरेशन को आप इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर रिटार्डेशन पूछा जाए आपसे, राइट, तो आप क्या करोगे? तो आप उसका मॉड लिख दोगे कि जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वहां पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो हम आंसर क्या देंगे? हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट आंसर है वो। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमें माइनस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एज सून एज अ कार जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला ग्राफ दिया है कार का और ये वाला ग्राफ दिया है स्कूटर का। तो जो कार है, कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अगर हम कार की बात करें तो कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, राइट? फिर उसका जो वेलोसिटी वो बढ़ते जा रहा है, उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। और दूसरा एक स्कूटर है। स्कूटर की बात करें अगर हम लोग, तो स्कूटर का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? उसका इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज आल्सो इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, आप क्वेश्चन लिख भी लीजिए। As soon as a car just starts from rest in a certain direction, a scooter moving with uniform speed overtakes the car. ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन किसको ओवरटेक करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, तो दैट विल हैव टू फाइंड आउट। तो पहला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड्स। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं, पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं, ए पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल निकालता है। तो सबसे पहले 15 सेकेंड्स, तो 15 सेकेंड्स में आप देखोगे, अभी आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले आप निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्कूटर के लिए आप देखोगे, स्कूटर के लिए, तो स्कूटर के लिए एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है ना, 15 सेकेंड्स में, राइट? ये जो रेक्टेंगल बना है ओ ई और राइट, ये वाला रेक्टेंगल, ये जो आपको दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो ये जो एरिया होगा, तो ये एरिया आ जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो लेंथ कितना है? लेंथ ले लो 15, ब्रेड्थ ले लो 30, 15 इंटू 30। ठीक है, यानी ये हो गया 450 मीटर। अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव है,
यानी वो वन डायमेंशन मोशन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मॉड के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ कब होगा, जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो वही एक केस ऐसा होता है जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी स्कूटर के लिए जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 450 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कार के बारे में। तो कार के लिए जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा शेड कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से ये जो ट्रायंगल है, राइट, ये जो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। किसके लिए, कार के लिए। तो उसके लिए भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो जो एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो गया 15 और हाइट हो गया 45, तो 15 इंटू 45, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। और ये भी जो डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड है वो आपको क्या देगा, वो आपको डिस्टेंस देगा। मतलब दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 15 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यानी इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि कार और स्कूटर जो है फर्स्ट 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस के लिए आप सबट्रैक्ट कर लो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा आपको सबट्रैक्ट करना होगा, तो वो हो जाएगा 450 माइनस 337.5। ठीक है, तो 450 माइनस 337.5 और वो निकल कर आ जाएगा 112.5। ठीक है, 112.5 मीटर। तो ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया कि द डिस्टेंस ऑफ कार एंड स्कूटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट वेयर द कार कैचेस द स्कूटर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि लेट आफ्टर टाइम t फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट t टाइम के बाद लेट अस अज्यूम दैट द कार कैचेस द स्कूटर। ठीक है, सो हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया लेट एट टाइम t इक्वल टू t द कार कैचेस द स्कूटर। ठीक है, तो अब दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर उनको एक दूसरे को कैच करना है या एक पॉइंट में मिलना है तो दोनों के जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बराबर होने चाहिए। तो अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना हो जाएगा, तो कार का जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल ट्रेवल्ड, तो वो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कार जो है, कार के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह का है, ऐसा है और ऐसा है। तो किसी भी टाइम t पे, अगर मैं ये t टाइम मान रहा हूं तो किसी भी, क्योंकि यहां तक तो नहीं होगा क्योंकि 15 सेकेंड में तो उनमें डिफरेंस है, 112.5 मीटर का डिफरेंस है, तो जो होगा वो 15 सेकेंड के आगे ही होगा। तो ये पूरा एरिया मुझे कंसीडर करना होगा, राइट, इसके डिस्टेंस के लिए। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू, पहले ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। फिर ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, तो मैं पहले ये ट्राइंगल जो है उसका एरिया लिख रहा हूँ और बाद में जो ये रेक्टेंगल है उसका एरिया में लिख रहा हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो जाएगा 45 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगा t माइनस 15। ठीक है, तो 45 इंटू t माइनस 15, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ऑलराइट, फिर से देख लीजिए, ये ट्राइंगल का एरिया मैंने लिया, ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने यहाँ पे निकाला था 337.5। और फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आपको ये लेंथ चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए, तो ये लेंथ हो गया, ये जो लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया 45, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया
इसका जो वेलोसिटी 45 है, और जो टाइम लगेगा उसको वो होगा t-15, तो वो ब्रेथ हो जाएगा। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर। अब स्कूटर का जो ग्राफ है वो कैसा है, स्कूटर का ग्राफ इस तरह का एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्कूटर चले जा रही है। तो टी टाइम में वो कितना ट्रेवल करेगा स्कूटर, वो होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 30 इंटू टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमको पहले वो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपको वो टाइम मिल जाएगा 22.5 सेकेंड्स, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए, तो टाइम निकल के आ जाएगा 22.5 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अब आपको बस ये देखना है कि आप किसी भी एक से, या तो इससे या उससे, कहीं से भी आप निकाल लो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ने या स्कूटर ने, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर बी पार्ट का, राइट। तो बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, अब ये 22.5 का आप यहाँ डाल दो, यानी 30 इंटू 22.5, तो वो निकल कर आ जाएगा 30 इंटू 22.5, ये निकल कर आ जाएगा 675 मीटर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 675 मीटर के बाद जाकर वो कार स्कूटर क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। ओके।